بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تصنیف مراقبہ میں برقی نظام کے عنوان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مادے کے اندر تفکر کیا جاتا ہے تو مادی قوانین اور مادی خصوصیات معلوم ہوتی ہیں۔ جب ہمارا ذہن مادے کی گہرائی میں جستجو کرتا ہے تو ایسی دنیا کا پتہ چلتا ہے جو مادیت کی بنیاد ہے۔ اس کو ہم لہروں کی دنیا یا روشنی کی دنیا کہہ سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے مادے کے اجزائے ترکیبی تلاش کیے تو ایٹم اور ایٹم کے ذرات سامنے آئے۔ ایٹمی ذرات میں الیکٹران کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ دوہری خصوصیات کا مالک ہے۔ ایک طرف مادی ذرہ ہے تو دوسری طرف لہر ہے۔ ایٹم کے اندر موجود لہروں کا نظام روشنی کی دنیا کا سراغ دیتا ہے۔ چنانچہ ہم اپنے ماحول میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک طرف مادی تشخص رکھتا ہے اور دوسری طرف روشنی کا ہیولہ ہے۔ روشنی کے ہیولے میں جو تحریکات پیدا ہوتی ہیں اسی کے مطابق مادی تشخص میں بھی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ سائنسی اصول کے مطابق اگر الیکٹران اور پروٹون کی تعداد میں تبدیلی کر دی جائے تو ایٹم اپنی ماہیت تبدیل کر دیتا ہے۔ نیوکلیائی عمل میں یورینیم عمل انشقاق کے بعد پلوٹینیم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ گویا وہ ایٹمی ذرات جو لہروں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ان میں تبدیلی واقع ہو جائے تو عنصر شکل بدل لیتا ہے۔ روشنی کی دنیا میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو مادی تشخص میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جس طرح ہر مادی وجود کے ساتھ برقی رو کا نظام کام کرتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی برقی نظام کار فرما ہے۔ روحانی سائنس کے مطابق انسان محض گوشت پوست، ہڈیوں اور خون سے مرکب ایک پتلا نہیں بلکہ خاکی وجود کے اندر نوری جوہر بھی ہے، اور یہی نوری جوہر اس کی اصل ہے۔ جوہر برقی رو یا کرنٹ ہے۔ جنریٹر انسان کے اندر بنیادی طور پر 3 جنریٹر کام کرتے ہیں۔ یہ جنریٹر 3 طرح کے کرنٹ پیدا کرتے ہیں۔ ان تینوں کرنٹ کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ مثال، شمع یا شمع کی لو 3 اجزاء کا مرکب ہے۔ نمبر 1 شعلے کا رنگ، نمبر 2 شعلے کا اجالا، اور نمبر 3 گرمی جو شمع کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم لفظ شمع کہتے ہیں تو اس سے مراد تینوں اجزاء کی اجتماعی شکل و صورت ہوتی ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی شمع کے وجود سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ شمع کی طرح انسان کے حواس بھی 3 برقی رو کے تابع ہیں۔ تمام خیالات، تصورات اور احساسات، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، ٹھوس ہوں یا لطیف، برقی رو کی مختلف ترکیبوں سے تشکیل پاتے ہیں۔ ان تینوں جنریٹروں کو ایک مرکزی پاور اسٹیشن کنٹرول کرتا ہے جسے امر، روح یا تجلی کہتے ہیں۔ جنریٹر نمبر 1 سے پیدا ہونے والا کرنٹ نہایت لطیف اور تیز رفتار ہے۔ اس کی قوت پوٹینشل بھی
नाकाबिले बयान हद तक ज़्यादा है। ये अपनी तेज़ रफ्तारी की बिना पर जहन को कायनात के तमाम गोशों से मुंसलिक रखता है। रफ्तार के तेज़ होने की वजह से इस करंट का अक्स इंसानी दिमाग की स्क्रीन पर बहुत धुंधला पड़ता है। इस अक्स को वाहिमा कहते हैं। तमाम एहसासात और तमाम उलूम की इब्तिदा वाहिमा से होती है। लतीफ़ तरीन ख़याल का नाम वाहिमा है, जिसे सिर्फ इदराक की गहराइयों में महसूस किया जाता है। वाहिमा गहरा होकर ख़याल बन जाता है। जनरेटर नंबर 1 से पैदा होने वाले करंट के दो हिस्से हैं, एक ज़्यादा ताकत का हामिल और दूसरा कम ताकत रखने वाला। एक ही बरकी रौ पहले तेज़ रफ्तार होती है और बाद में उसकी रफ्तार कम हो जाती है। ज़्यादा ताकतवर या तेज़ रफ्तार करंट कायनात का शऊर या कायनात का रिकॉर्ड है, और कम ताकत का हामिल करंट वाहिमा कहलाता है। जनरेटर नंबर 2 से भी दो तरह की बरकी रौ पैदा होती है, एक मनफी और दूसरी मुस्बत। मनफी लहर वाहिमा में दाखिल होती है तो वाहिमा ख़याल बन जाता है। ख़याल वाहिमा की तफसीली सूरत है, लेकिन ये भी निगाह से पोशीदा रहता है। ख़याल पर मुस्बत करंट गालिब आ जाए तो वो तसव्वुर में ढल जाता है। ख़याल में खदोखाल पैदा हो जाएं तो उसे तसव्वुर कहते हैं। तसव्वुर ऐसा खाका है जिसे निगाह तो नहीं देखती, लेकिन जहन शक्ल व सूरत का अहाता कर लेता है। जनरेटर नंबर 3 की बरकी रौ का काम एहसासात को गहराई बख्शना है। ये बरकी रौ मौज की शक्ल रखती है, यानी इसकी एक हरकत ऊपर की तरफ और दूसरी नीचे की जानिब होती है। बाल्फाज दीगर ये दो हरकत दो तरह के एहसासात जहन को अता करती हैं। ऊपर के रुख हरकत या सऊदी हरकत एहसासात में रंगीनी है। इस हरकत में तसव्वुर इतना गहरा हो जाता है कि आदमी बेइख्तियार अमल की तरफ खिंचने लगता है। नुज़ूली हरकत या नीचे की हरकत अमल या मुज़ाहिरा है। अम्र या तजल्ली में कायनात का मजमूई इल्म रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद है। ये रिकॉर्ड हरकत में आकर वाहिमा बन जाता है। इस हरकत को करंट नंबर 1 कहा गया है। करंट नंबर 2 की मनफी लहर वाहिमा को ख़याल की शक्ल व सूरत अता करती है, और ख़याल के ज़रिए तमाम मखलूक़ात एक रिश्ते में बंधी हुई हैं। यही वजह है कि मखलूक़ात में तकाज़े मुश्तरक हैं, मसलन भूख, प्यास, रंज, गुस्सा, बकाए नस्ल का जज्बा वगैरह। करंट नंबर 2 की मुस्बत लहर इंसान को अपनी नौ के तसव्वुरात से आशना करती है। करंट नंबर 3 का नुज़ूली रुख एहसासात में ठोसपन है, और सऊदी रुख एहसासात में रंगीनी है। सऊदी रुख में आदमी के तमाम एहसासात जिस्म से अपना रिश्ता मुनक़ता करके ज़मान व मकान से आज़ाद हो जाते हैं। नुज़ूली रुख में आँख, कान, नाक, हाथ पाँव के ज़रिए हवास का मुज़ाहिरा होता है, और सऊदी रुख में बसारत, समात, गुफ्तार और लम्स की सलाहियतें आज़ा के बग़ैर काम करती हैं। आदमी के जहन से 3 करंट गुज़रते हैं, और वो बैक वक्त तीनों कैफियत में सफ़र करता है। लेकिन जिस करंट का अक्स जहन की स्क्रीन पर गहरा होता है, आदमी उसी की खुसूसियात में खुद को मुतहर्रिक देखता है।
अगर करंट नंबर 3 पर करंट नंबर 2 या करंट नंबर 1 का सेंशन गालिब आ जाए तो आदमी तसव्वुर, ख्याल और वाहिमा की रफ्तार से सफ़र करने लगता है और ये तमाम मख्फी इत्तलात तस्वीरी फिल्म की सूरत में सामने आ जाती हैं। मुराकबा की मश्क से करंट नंबर 2 और करंट नंबर 3 की ताकत बढ़ने लगती है। ताकत बढ़ने से मुराद ये है कि दिमाग का रिसीवर उन इत्तलात को ज़्यादा बेहतर वसूल करने लगता है। 3 करंट। अभी हम बयान कर चुके हैं कि इंसान के अंदर 3 बरकी करंट काम करते हैं। बाल्फाज दीगर इंसान के अंदर जो सलाहियतें काम करती हैं वो 3 दायरों में मजहर बनती हैं। ये तीनों करंट महसूसात के 3 हयूले हैं और हर हयूला मुकम्मल तशख़्ख़ुस रखता है। हर करंट से इंसान का एक जिस्म वजूद में आता है। इस तरह आदमी के 3 वजूद हैं या आदमी 3 जिस्म रखता है। मादी जिस्म, रोशनी का बना हुआ जिस्म और नूर से बना हुआ जिस्म। ये तीनों जिस्म बैक वक्त मुतहर्रिक रहते हैं, लेकिन मादी जिस्म शऊर सिर्फ मादी हरकात का इल्म रखता है। मिसाल के तौर पर मादी जिस्म के अंदर लातादाद अफ़ाल वाक़े होते रहते हैं। फेफड़े हवा खींचते हैं, जिगर के अंदर हज़ारों तामुलात बरसरे अमल रहते हैं, दिमाग के अंदर बरकी रौ के ज़रिए हैरान कुन करिश्मा जारी रहता है। पुराने खुलियात फना होते हैं, नए खुलियात बनते हैं। उनमें अक्सर आमाल को हमारा शऊर महसूस नहीं करता और ना हमारा शऊरी इरादा उनको कंट्रोल करता है। शऊरी इरादे के बग़ैर ये आमाल खुद ब खुद एक तरतीब से वाक़े होते हैं। हमारे अंदर रोशनी और नूर के जिस्म भी काम करते हैं, लेकिन शऊर उन्हें महसूस नहीं करता। सिर्फ ख्वाब या मुराकबे की कैफियत ऐसी हैं जिनमें हमें रोशनी के जिस्म का एहसास होता है। उन कैफियत में हमारा मादी जिस्म मुअत्तल रहता है। इसके बावजूद हम जिंदगी का हर फेल अंजाम देते हैं। उस कैफियत में रोशनी का जिस्म हरकत करता है। इस जिस्म को हयूला, जिस्म मिसाली भी कहते हैं। अगर ख्याल की कुव्वत को बढ़ाया जाए तो जिस्म मिसाली की हरकात सामने आ जाती हैं और हम जिस्म मिसाली को इरादे के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म मिसाली की रफ्तार मादी जिस्म से 60,000 गुना ज़्यादा है। ख्वाब में नूर का जिस्म भी मुतहर्रिक हो जाता है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि हम नूरानी वारदात को याद नहीं रख पाते। नूर का जिस्म रोशनी के जिस्म से हज़ारों गुना तेज़ सफ़र करता है। अगर ख़याल की ताकत में मतलूबा इजाफ़ा हो जाए तो आदमी नूर के जिस्म से मुतारिफ हो जाता है। रूहानी लोग मुराकबे पर उबूर हासिल करके रोशनी और नूर दोनों में सफ़र करते हैं। मुराकबे के ज़रिए आदमी की शऊरी कैफियत रोशनी के जिस्म में तहलील हो जाती हैं और आदमी रोशनी की रफ्तार से सफ़र करने लगता है। उसे वो बातें मालूम हो जाती हैं जो रोशनी के अंदर मौजूद हैं। ये बात वाज़े कर देनी ज़रूरी है कि यहाँ रोशनी से मुराद वो रोशनी नहीं है जो हमें नज़र आती है, बल्कि ये उस रोशनी का तस्करा है जो ज़ाहिरी आँखों से नज़र नहीं आती। इसी तरह जब शऊरी कैफियत नूरानी दुनिया में जज्ब हो जाती हैं तो नूर का जिस्म बरसरे अमल आ जाता है। उस वक्त आदमी नूर की शुआओं के ज़रिए ज़मानियत
اور مکانیت کو طے کرنے لگتا ہے۔